المیریہ الواز کمال الدین علی محمد جماعت کے سامنے واز پیش کریں گے. جماعت فیضیاب ہو. دیندارو، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام پہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ عمل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے جن کو آپ فالو کر سکیں. اور ساری دنیا کے مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے ایک نمونہ بناتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لوگ اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مجموعی طور پر ایک چیز جو مسلم امہ میں نظر نہیں آتی آپ کی سیرت میں سے، جو آپ کی سیرت کا ایک بہت ہی اہم بنیادی پہلو رہا ہے، شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. اور جب بھی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہم سب نے یہ پڑھا ہے کہ جوانی کے وقت سے ہی آپ ایک تلاش میں، ایک جستجو میں، میڈیٹیشن میں، مراقبے میں رہتے تھے. آپ کئی دن تک بستی کو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ذکر و مراقبہ کرتے تھے. اور اسی کے نتیجے میں آپ پر روحانی انکشاف ہوا، روحانیت کا دروازہ آپ پر کھولا گیا، جس کی بہت بڑی نشانی کے طور پر، ایک معجزے کے طور پر قرآن حکیم آج ساری دنیا کے سامنے ایک ہدایت کے سرچشمے کے طور پر ہمارے سامنے ہے. لیکن آج جس طریقے سے حضور پاک کی سیرت پہ عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو عام مسلمانوں کی زندگی کی پریکٹس میں یہ مراقبہ، یہ آدھی رات کی عبادت، یہ میڈیٹیشن، یہ خلوت میں چلے جانا، تلاش، جستجو، روحانی اسپریچول سرچ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. اور اس کے مقابلے میں بہت سی ظاہری چیزیں ہیں جن پر زور دیا جاتا ہے. قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس میں آدھی رات کو اٹھ کے، آدھی رات کو جاگ کر ذکر و فکر کرنے اور مراقبہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن حکیم کی سورہ مزمل آپ پڑھیں، قرآن کی 73ویں سورہ ہے. ذکر کی باتیں، روحانیت کی باتیں بھری ہوئی ہیں اس میں. یا ایھا المزمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نام سے یاد کیا گیا ہے. مزمل چادر اوڑھ کے سونے والے کو کہتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھ. قم اللیل، رات کو اٹھ. نصفہ،
अविन कुछ मिन्हु कलीला, आधी रात को उठ, उसमें कुछ बढ़ा ले या कुछ कम कर ले, मगर आधी रात को उठ। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और अल्लाह के पैगाम कुरान और जो चीज पढ़ने की है उसे खूबसूरती के साथ पढ़ा कर। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, एक पेशनगोई है कि हम तुम पर एक बहुत भारी बोल नाजिल करने वाले हैं। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम एक बहुत भारी बात, वजनदार बात आप पे नाजिल करने वाले हैं। तो उसके प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उसकी ग्राउंड वर्क के लिए अल्लाह फरमाता है आधी रात को उठ और अल्लाह का जिक्र कर, हम तुझ पे बहुत भारी बोझ नाजिल करने वाले हैं। इन्ना नाशियतल लैल ये अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बेशक रात को उठना तकलीफ दे है, नफ्स के लिए बड़ा भारी है। व अक़वमु क़ीला, मगर तुम्हारे कौल के लिए, तुम्हारी बातों के लिए बहुत ही अच्छा है कि रात को जो उठने वाले हैं, रात को जो जिक्र करने वाले हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी बातें सीधी होती है, उनकी बातें सच्ची होती है, उनकी बातें अच्छी होती है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, बेशक दिन में तेरे पास और बहुत सारे काम है, दिन में तेरे पास बहुत काम है। रात को उठाकर फस्कुरिस्म रब्बिका, अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र कर। जिक्र का जहां जहां जिक्र आया है, कई जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ नाम का जिक्र किया है। फस्कुरिस्म रब्बिक, अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र कर। व तबत्तल इलैहि तब्तीला, और हर चीज से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान सिर्फ खुदावंद ताला की जात की तरफ कर ले। आज भी रूहानियत की तलाश करने वाले और ईस्ट या वेस्ट, वो तमाम साइंस जो रूहानियत की तरफ आपकी रहनुमाई करते हैं, मजहब हो या साइंस हो, वो एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा अच्छा वक्त है, जो बेहतरीन वक्त है, वो सुबह 4 बजे का वक्त है। रूहानी जुस्तजू और रूहानी तलाश का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम है, जो रूहानी एनर्जी से भरपूर है, वो सुबह 4 बजे का वक्त है। और मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल-हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने हमारे बहुत इस लंबी ट्रेडिशन को बरकरार रखा है और हमें बैतुल ख्याल का काम दिया है, जिसके जरिए से हम उस वक्त को संभालते हैं और हमारी जिंदगी की जो अहम, बहुत ही बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने में हमारे रास्ते में वो मददगार साबित होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में अपने आप को याद करने, उसकी इबादत करने के लिए 3-4 किस्म के अमाल बताए हैं। सलात है, जिक्र है, दुआ है और तस्बीह है। ये सब चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है सलात कायम करो, अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, दुआ करो अल्लाह से। ये सारे रास्ते अल्लाह की इबादत करने के वास्ते हैं। कोई एक रास्ता नहीं है सिर्फ कि जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और खास तौर पर जिक्र को दूसरी इबादत से सलात के मुकाबले में एक कदम आगे कहा गया है। सलात पे बहुत जोर दिया जाता है। तो अल्लाह फरमाता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, आप पर किताब में से जो भी नाजिल हुआ है उसे आप तिलावत करें, उसे पढ़ें। व अकीमुस सलात, और सलात कायम करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सलात तुमको बुराइयों से और बेहयाइयों से बचाती है। ये सलात का काम है। सलात तुमको बुराइयों और बेहयाइयों से बचाती है।
वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। इस सलात के कंटिन्यूएशन में अल्लाह ने फरमाया सलात का ये काम है, मगर जिक्र बहुत बड़ी चीज है, जिक्र उससे कहीं ज्यादा बढ़कर चीज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, या ईमान वालों अल्लाह का खूब जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह और शाम उसकी तस्बीह पढ़ा करो। जिक्र का जहां जहां जिक्र आया जिक्रन कसीरन बहुत कहा गया, बहुत ज्यादा जिक्र करो। वो जो कम जिक्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुजम्मत करता है कि ये बहुत कम जिक्र करते हैं। अल्लाह को बहुत ज्यादा जिक्र करो। बहुत ज्यादा जिक्र करने का क्या मतलब है? देखिए, हम जब नहाने के लिए जाते हैं तो हमें काफी पानी की जरूरत पड़ती है। हमें प्यास भी लगी हो तो 2-4 कतरे पानी से बात नहीं बनती है। 2-4 कतरे पानी से नहाया नहीं जा सकता। पानी तो वो भी है मगर कलील है, बहुत कम है, बात नहीं बनती है। अल्लाह ताला फरमाता है जिक्रन कसीरन, यानी जिसको हम कहते हैं आप सैचुरेटेड हो जाएं, उसमें रस बस जाए। जिस तरह एक स्पंज होता है, स्पंज को आप दबा के पानी में डाल दें, आप देखिए वो पूरा पानी को सोख करता है, पूरे पानी को अपने अंदर जज्ब करता है। उसको आप फिर निचोड़ें तो ढेर सारा पानी निकलता है। जिक्र इस तरह होता है। जिक्र का तरीका अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम जिक्र में रच बस जाओ। फस्कुरूनी उसकुरकुम, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। अल्लाह हमारा जिक्र करे। हमारे जिक्र के मुकाबले में ये हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम ले, हमें याद करे, हमारा जिक्र करे। ये ऐसा रिवॉर्ड है जो जिक्र के नतीजे में फज़्कुरूनी, तुम मेरा नाम लो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो। अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करता हूं। तो ऐ ईमान वालो अल्लाह का खूब जिक्र करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह पढ़ो। उसके नतीजे में क्या होता है? हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, वो अल्लाह और उसके मलाइक तुम पे सलवात भेजते हैं। ये उसी तरह की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलवात भेजते हैं। और यहां अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी व मलाइकतहू युसल्ली अलैकुम, अल्लाह उसके फरिश्ते तुम पर सलवात भेजते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए। तो खूब जिक्र करो, खूब तस्बीह पढ़ो। इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम पर नाजिल होती है, जिसके नतीजे में तुम अंधेरों से निकाल कर वो अल्लाह की रहमत तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाती है। तो रोशनी की तरफ जाने का रास्ता जिक्र है, सुकून और इत्मीनान का रास्ता जिक्र है। आज सुकून, इत्मीनान, राहत, आराम, पीस, इसकी कितनी किल्लत है हम जानते हैं। इंसानियत कितनी दुखी है आज हम जानते हैं। और तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं कि 2 घड़ी आराम के, 2 घड़ी सुकून के, 2 घड़ी राहत के, 2 घड़ी इत्मीनान के मिल जाए। ये बहुत रेयर कॉमोडिटी हो गई है, आज नहीं मिल रही है। दौलत बहुत है, बाकी चीजें बहुत है, मगर ये चीजें जो हमारे वैल्यूज है, जो बहुत कीमती चीज है, आज रेयर हो गई है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तो फ्री में बांटता हूं, मैं तो तुमको फ्री में बांटता हूं, सिर्फ बैठ के मेरा जिक्र कर लो। सुकून चाहिए तो, इत्मीनान चाहिए तो,
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही इत्मीनान हासिल होता है। और ज़माने के इमाम का भी यही फरमान है कि सुख हासिल करने की एक ही कुंजी है, इबादत है। और जो सुकून हासिल करते हैं वो दिल जिनको इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उन पर कितनी बड़ी नेमत नाजिल करता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ए इत्मीनान हासिल करने वाली रूह, ए पीसफुल सोल, इरजी, वापस आ जाओ। हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से हैं और हम अल्लाह की तरफ वापस लौट रहे हैं। अल्लाह फरमाते आजा वापस, मगर किसको? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पाने वाली रूह। और इत्मीनान पाने वाली रूह कौन सी रूह है? जो जिक्र के जरिए से इत्मीनान पाती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी, वापस आ जा, लौटा अपने परवरदिगार की तरफ। किस हाल में? रादियतम मर्दिया, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इस हाल में मेरी तरफ वापस लौट कि मैं तुझसे राजी हूं और तू मुझसे राजी है। वो अल्लाह तुझसे राजी है और तू अल्लाह पे राजी है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, बार बार कुरान शरीफ में यह आयत आई है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश है। कितना अच्छा प्यारा रिश्ता बन जाता है जिक्र के जरिए से। रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी, आजा मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, आजा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इत्मीनान पाने वाली नफ्स, इत्मीनान पाने वाली रूह, तो ये दीन का जौहर है। मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ने बैतुल ख्याल के बारे में फरमाया, ये हमारे तरीके में बुनियादी हैसियत रखती है। मौलाना ने फरमाया हुजूर पाक के जमाने में आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमान इतना ज्यादा काम कैसे कर सकते थे। देखते ही देखते दुनिया भर में वो फैल गए। मुसलमान इतना ज्यादा काम कैसे कर सकते थे? क्योंकि वो इबादत करते थे, क्योंकि वो इबादत करते थे। और ये बैतुल ख्याल का फरमान है, तो मौला बैतुल ख्याल की इबादत की, मेडिटेशन की, जिक्र की बात करते। और एक और फरमान में फरमाया कि आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मुसलमानों ने इबादत को छोड़ दिया तो मुस्लिम एम्पायर तबाह हो गई। मुसलमानों ने जब इबादत को छोड़ दिया तो मुस्लिम सल्तनतें तबाह हो गई। सल्तनत तो दुनियावी चीज थी, मगर जो स्ट्रेंथ, जो पावर, जो ताकत उनको पकड़ी हुई थी, वो बुनियादी चीज, जो बेसिक वैल्यू है, इबादत, जिक्र, बंदगी। और मौला हमें यही फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी का जो लंगर है, जो बुनियाद है, वो इस जिक्र में है, इबादत में है, बंदगी में है। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम हमें इबादत, बंदगी, जिक्र में मशगूल रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करें, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करें, ईमान दीदार नसीब करें। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खानवदान मौलाना हज़मा ईमान दीदार नसीब करें।